friends. How are you? Hope you are doing well. You're well, then let's get started. See, today our topic is method of solution of differential equations. Obviously, it is in first order and first degree. We are not going to see the higher level. There are actually the 6 methods which we have to study. The very first method is variable separable method. It is easy and at the same time it is important because if you are going to study the second method, in that you have to use this one, and if you are able to understand this, then further methods can be more easy. Okay, so please pay attention and try to understand. So this is the theory part. In this method, we are rearrange the differential equation in the form of f of x dx plus g of y dy equal to 0, or f of x dx is equal to g of y dy. What do you mean by that? See, f of x dx means this is x and this is dx. Means this is a function in which having x term. G of y dy means there is a function in which the terms are in y only, right? You can write this equation is in this form also. This or this means either this. So f of x, the function of x alone, and g of y is the function of y alone. I'm just writing. So हम लोग क्या कर सकेंगे? हम लोग एक इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे या तो इस इक्वेशन को इस तरह लिखेंगे. Means you observe here the function of x, the terms of x, the terms of x left hand side. In terms of y and terms of y and right hand side. Means in this equation, what we have actually done, we collect the all terms of x in one side and all the terms which contain y in other side. ठीक है, जितने भी x की टर्म्स है वो हम लोग ने कलेक्ट किया और हमने उसको एक साइड में डाला. जितने भी y की टर्म्स है हमने उसको कलेक्ट किया और हमने उसको एक साइड में डाला. ठीक है, सो यही हमको करना है और वही आपके मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड. वेरिएबल्स कितने हैं? तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा कि जहाँ में आपको दो वेरिएबल दिए हुए हैं. दो वेरिएबल मतलब x और y आपको दिए होंगे. तो आपको करना क्या है कि उनको सेपरेट करना है. नाम में ही वो आता है कि वेरिएबल सेपरेबल. तो वेरिएबल आपको सेपरेट करना है. वेरिएबल सेपरेट कैसे होंगे? एक वेरिएबल को एक साइड में डाल दो, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड में डाल दो, पूरी तरह से सेपरेट कर दो. ओके, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल. वंस यू हैव डन इट, अगर आपने ये कर लिया कि आपने एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से आपने x की टर्म को एक जगह ले लिया, y की टर्म को एक जगह ले लिया, ये आपकी प्रोसीजर जब हो जाती है, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू जस्ट इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन लेना है उस इक्वेशन का, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन आपने जिस फॉर्म में डालना है उस पर डिपेंड करना है. अगर आपने इस फॉर्म में डाला तो सिंपली व्हाट यू आर डूइंग इंटीग्रेशन फ्रॉम f of x dy इंटीग्रेशन ऑफ g of y dy इज इक्वल टू c. अब c क्यों आता है ये तो आपको पता है. इंटीग्रेशन जहाँ पे भी आएगा, अगर इंटीग्रेशन आप लोगे तो ऑब्वियसली जीरो इंटीग्रेशन को कांस्टेंट मतलब करोगे तो आपको कांस्टेंट नंबर आएगा. On the same basis, f of x dx and integration of g of y dy plus c एक arbitrary constant होता है c, है ना. सो ये आपका थ्योरी पार्ट होता है. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा. स्टार्ट हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल से करेंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए. First example is, very first example is solve x dy minus y dx is equal to 0. What you have to give it? X dy minus y dx is equal to 0. Now observe that in this differential equation they have given two terms. One is x dy, second is y dx, right? You have to separate the variables, but before that they have given two terms. We can separate that
term like this. Okay, now observe that there is a term of x, and in this term there is dy, means y की term, right? X की term, y की term. Here also y and dx means y and d, y and x, sorry. So x and y, अगर हम लोगों ने ये एक लेफ्ट हैंड साइड में वन टर्म इज देयर एंड अदर साइड में भी एक दूसरी टर्म दिख रही है, लेकिन दोनों टर्म्स में वेरिएबल अभी तक सेपरेट नहीं हुए. टर्म सेपरेट बस हमने की है, वेरिएबल नहीं सेपरेट किए. सो व्हाट वी कैन डू, हम क्या करेंगे कि हमको अभी ये x x की टर्म एक साइड चाहिए, y y की टर्म, तो ये dy है और यहाँ पे ये y, मैं इस y को इस साइड लेके आ सकती हूँ, राइट? सो सॉरी, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, राइट? नाउ यहाँ पे न्यूमरेटर में dy है, यहाँ पे y मीन्स y एंड y की टर्म, राइट? एट द सेम टाइम dx अपॉन x मीन्स x की टर्म, y की टर्म इक्वल टू x की टर्म. जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ था उसमें x y एंड y x ऐसे दो टर्म्स थे. ये वाली इक्वेशन में जब आप पहुंचे हो तो y की टर्म्स और x की टर्म्स सेपरेट हो चुकी है. मीन्स व्हाट वी हैव गेट वेरिएबल सेपरेबल. ओके, ये जो फॉर्म हमको चाहिए था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वो हमको मिल गया. अब और एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, dy न्यूमरेटर में और मैं ये वाला यहाँ पे लेके आ रही हूँ, ठीक है? अब आप बोलेंगे मैम dx यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट हमेशा हमने जो डेरिवेटिव्स की टर्म होती है dy एंड dx, ये हमेशा न्यूमरेटर फॉर्म में, मतलब ऊपर होने चाहिए. मतलब जैसे नेक्स्ट स्टेप में आप इस तरह से लिख सकोगे ना, ऐसा. ओके, राइट? अगर मैं इसका अपोजिट करती, अगर मैं इस साइड लेके जाती, ये dy अगर मैं इस साइड लेके जाती, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये डिनोमिनेटर में आ जाता है dy, डेरिवेटिव की टर्म डिनोमिनेटर में जाती है. अगर डेरिवेटिव की टर्म डिनोमिनेटर में जाती है तो नेक्स्ट स्टेप्स में जो हम इंटीग्रेशन वगैरह कुछ लेना चाहते हैं वो हम नहीं ले सकते ना, अगर ये फॉर्म आता है तो. ये फॉर्म है तो वी कैन डू इट, राइट? सो हमेशा ऑब्जर्व करना, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को कि आपकी जो भी डेरिवेटिव्स की टर्म रहेगी वो हमेशा न्यूमरेटर के फॉर्म में होनी चाहिए, उसको कभी डिनोमिनेटर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? सो आपके लिए वो easy रहेगा. So this is my variable separable form, right? And what is my next step? Integrate. We have to integrate it. Integrating on both sides, we get integration of dy upon y is equal to integration of dx upon x. Integration of dy upon y is, all of you know, this is log y, this is log x plus c. अब ये log y log x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आ जाऊँगी, okay? Plus c. What is this? This is your log y, log a minus log b means log a upon b. Is it me? इस c को मैं इस तरह लिख सकते हैं, c इज कांस्टेंट और मैंने कांस्टेंट कोई और अलग फॉर्म में लिखा, राइट? log c डैश यू कैन सी. अब मैंने ऐसे क्यों किया, व्हाई आई एम डूइंग दिस? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में log की टर्म है, राइट हैंड साइड में भी log अगर होगा तो वो कैंसिल हो सकता है, इसलिए मैं इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के वे में लिख रही हूँ. दिस इज अनदर वे टू राइट द कांस्टेंट. ओके, सो log दोनों साइड में अगर ये कैंसिल हो जाते हैं तो you will get y upon x is equal to c dash. You can write y is equal to x into c dash. So this is my required differential equation. Okay, I think all of you understand it, and if you like it then please comment on comment section and please share my